Them with a big close-up round. Tilak ceremony is symbol of auspicious events which shall usher victory and good fortune. In a world filled with distraction and chaos, we must aspire to focus and concentrate upon circuitous conscience. So we are welcoming our guest by shimmering tilak as well as with the bezels. Just now, Chief Guest Shri Kunaljeet Singh Ji and today's President Shri Gajendra Singh Ji Chauhan, we welcome them. It's a request from all my beloved and respected parents, please don't stop your claps. Please give them a huge and warm welcome. And Chaitanya and Porva, continue music, madam. Start the music. With the music, the sound of claps must be there. It seems that yes, we all have gathered for this annual day. It's a very big day for all of us.
93.17% of marks. He is also 95.17% of marks and having the 15,000 rupees of cash prize. Ayush Nayan, nice. Ankit, son of Mr. Mahesh Kumar, 90.17%, 5,000 rupees. Thank you, sir. Please put your hand together for these students. Ashok Saini sir, Rahul Mishra sir, Rekha Swami ma'am. Due to their hard work, these students have scored these many marks. So for these teachers also, please put your hands together. School management felicited these incentives to the students and teachers by giving them cash prizes. Rahul Mishra sir is going to receive envelope. Merit holders, be ready. Please motivate with your claps to these students. Primary section topper Divya Singh, topper from the middle section 6 and in science stream topper is Nancy, daughter of Shri Jagdeep. Arav Punia, second A2. Hiren Punia, Sakshi, second B1. Students, if you are sitting in the audience area, fourth A2. Yes, hurry up now, the students started, so better come. Hanupriya, 4th A3. Navya Punia, 5th A1. Arav Chaudhary, 5th A2. Deepika, 5th A3. 6th A1. Nikun, 6th A1. Sana Khan, 6th A2. Vivan Dhaka, 6th A3. Rohit Kichad, 6th B1. Muhammad Rehan Khan, 6th B2. Harshita Gupta. Anuj Moon, 7th A3. Yug Kichad, 7th B1. Anuj Kumar, 7th B2. Divya Singh, 8th A1. Abhinav, 8th A2. Milman Shekhawat, 8th A3. Yogesh Sharma, 8th B1. Jishan Khan, 8th B2. Arpita Saini, 9th A2. Soumya Saini, 9th B1. Lokesh Kumar, 9th B2. Aryan Dood, 9th B3. Riya Suiwa, 11th Commerce and Nancy, 11th A2. Next prize we have, this is for our dedicated non-teaching staff, those who are performing their duties with 100% responsibility. So Mukesh ji, wherever you are, please come here by the stage. Mukesh ji Bitharwal. These all students are their own class section toppers of the last year, last session 2021-22. It's a love, it's a respect for you, sir. महाभारत डिस्कस में देखिए, पीछे हाथ कम उठ रहे हैं,
किस किसने देखी है? हाथ ऊंचा करो। वो तो सड़क है। और महाभारत किस किसने की है? सबके हाथ नीचे। पति पत्नी की तरफ देख रहा है और पत्नी पति की तरफ देख रही है। महाभारत तो की है, लेकिन बताना ठीक नहीं है। रणमा साहब, ज्ञान जी और यहाँ का तमाम मैनेजमेंट और फैकल्टी, सविता मैम, मेरे मित्र गुलाबी जी और जितने भी अभिभावक आए हैं, एलुमनाई आई है, प्रेस मीडिया है, स्टूडेंट्स हैं, छात्रगण हैं, माता पिता हैं, आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ आने पर आप लोगों ने मेरा इतना अभिवादन किया है। एक बात देखकर बहुत खुशी हुई, बच्चों में वो संस्कार हैं जो भारतीय होने पर होने चाहिए। बच्चे जब बैठ चुके हैं तो एक कपकपी सी आ जाती शरीर में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद इस लायक हूं नहीं, लेकिन फिर भी अगर बच्चे पैर छुए हैं तो महाभारत में एक लाइन थी कि प्रणाम का परिणाम केवल आशीर्वाद हो सकता है। अगर आप दुश्मन के भी पैर छुएंगे तो उसका हाथ अपने आप आपको आशीर्वाद देने के लिए उठ जाएगा। और राजस्थान की ये पवित्र पावन भूमि हम लोगों के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि इस धारावाहिक को आप लोगों ने 34-35 साल पहले टेलीविजन के माध्यम से देखा था। उसका जो फाइनल युद्ध था वो राजस्थान की धरती पे जयपुर के पास ही हमने शूट किया था। पीछे आवाज आ रही है, कोई शकुनी दुर्योधन का वंशज तो नहीं बैठा हुआ? पीछे आवाजें बहुत आ रही हैं। आप सुनना चाहते हैं तो मैं सुनाऊं, नहीं तो फिर बातें करके निकल जाऊंगा। महाभारत सुनना चाहते हैं? आवाज नहीं है, नहीं सुना, मजा भी नहीं है। देखो बच्चे सुनना चाहते हैं, बड़े मना कर रहे हैं। बड़े सुनना चाहते हैं, करना तो नहीं चाहते। दोस्तों, स्कूल की कई खूबियां जो प्रिंसिपल साहब ने हम लोगों के सामने रखी, एकेडमिकली बहुत ही बेहतरीन स्कूल है। और यहाँ का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा मैंने, वो बहुत ही शानदार और जानदार नजर आया। मुझे मंच पे कई शाहरुख खान और कई माधुरी दीक्षित दिखाई दे रही थी। कला जगत का भविष्य ऐसे ही शुरू होता है। मुझे याद है, मैं जब स्कूल में था तो मुझे प्रिंसिपल ने कहा था श्रवण कुमार का रोल तुम करोगे। मुझे उस वक्त नहीं मालूम था कि मेरी उस यात्रा की शुरुआत हो गई है जो अनंत है, जो अभी तक चल ही रही है। 1200 धारावाहिक कर चुका हूँ, 450 फिल्में कर चुका हूँ और यात्रा अभी भी जारी है। और समय समय की बात है कि मुझे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ा फिल्म का विषय लेकर इस देश में इंस्टीट्यूट है पुणे में, उसका चेयरमैन बनाया गया। और आजकल एकेडमिकली मैं पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट जो रोहतक में है, वहां का मुझे वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि जिंदगी में कोई भी काम करो उसमें दो चीजें होना बहुत जरूरी होती है। एक तो ईमानदारी। जब आप कोई भी काम ईमानदारी से करेंगे तो उसकी ताकत 4 गुना हो जाती है। और जब कोई भी काम आप करें उसे पैशन से करेंगे, आपके अंदर पैशन होगा तो उसकी ताकत 8 गुना हो जाएगी। कला ऐसा क्षेत्र है जो बहुत डिमांडिंग है। मैं छोटे छोटे बच्चों को परफॉर्मेंस करते हुए देख रहा था। मैं उन तमाम टीचर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पिछले काफी समय से, मुझे लगता है महीना या 2 महीना लगाया होगा, इन बच्चों को ट्रेन करने के लिए, और इतना सुंदर कार्यक्रम आप सबके सामने उन बच्चों ने प्रस्तुत किया। मैं बहुत
खुश हूं बच्चों का डिसिप्लिन देखकर। और ये सारा श्रेय जो है यहाँ की फैकल्टी, प्रिंसिपल साहब, रणवा साहब, इन्होंने जो एक उद्देश्य लेकर चला है कि हम बच्चों को किस तरह मोल्ड करना है, क्योंकि शिक्षा जो है वो माध्यम है जिससे हम राष्ट्र निर्माण करते हैं। राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा आसान तरीका जो है वो हमारा शिक्षा का है, और शिक्षा वो माध्यम है जिसके माध्यम से गरीबी से बाहर आने का सबसे सस्ता और सुंदर तरीका है। इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से नियुक्त हुए हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने शिक्षा पे बहुत जोर दिया है, और अब जो है नई शिक्षा नीति लेकर आ रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि 2030 उन्होंने डेडलाइन दी है, तब तक सब स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में नई शिक्षा नीति लागू होगी। और ये शिक्षा नीति भारतीयों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी, क्योंकि हम स्वयं उससे गुजर रहे हैं। उस शिक्षा नीति को हमें ये वादा किया हरियाणा सरकार से कि 2023 में ही लागू कर देंगे। जहां तक आप लोगों के मन में, मुझे रणवा साहब ने भी बताया, एक छात्र जो है ये पूछ रहा था कि महाभारत में मैंने जुआ क्यों खेला था। आप लोगों के किसी के मन में और प्रश्न है ऐसा कुछ? उसे हो तो माइक दे दिया जाए और प्रश्न पूछे। पहले तो मैं उस बच्चे का जवाब दे दूं। रणवा साहब गौर फरमाइएगा। देखिए, अपने पिताजी का कहना सब मानते हैं, लेकिन पिताजी के बड़े भाई का कहना मानना ये बड़ा असंभव सा होता है। और धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना धर्म निभाते हुए अपने ताजश्री यानी ज्येष्ठ पिताश्री का कहना माना, जबकि उसे मालूम था ये गलत है, कि जुआ खेलना गलत है। और अगर आपने उस एपिसोड के अंत में देखा होगा तो दोहा वही आता है कि जुआ बुरा है खेलना, करे बुद्धि का नाश, धर्मराज का धन भी बधा जुए के पास। महाभारत जो है अच्छाई और बुराई दोनों को दिखाता है। रामायण जो है वो हमें जिंदगी में ये सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, रूल्स ऑफ लाइफ। और महाभारत ये सिखाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे अंधे का पुत्र अंधा कह देना, पूरी महाभारत करा देना, पूरे वंश का सत्यानाश करा देना। इसलिए जिंदगी में कभी भी बात सोचो तो करने से पहले उसे सोचो, उस पर गौर करो। ये सारी शिक्षाएं जो है महाभारत और रामायण से हमें मिलती हैं। ये हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस देश में दोनों महाकाव्य हैं। राम का वो आदर्श जीवन भी हमने देखा, और कौरवों और पांडवों का वो युद्ध भी हमने देखा। ये सिर्फ देखने की चीजें नहीं है, ये सीखने की चीजें हैं। क्योंकि महाभारत अगर समय पे आप बार देखोगे तो आपको नयापन लगेगा। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन को समझाते हुए कहा था कि भाइयों के बीच स्नेह के अतिरिक्त कुछ और तो होना ही नहीं चाहिए दुर्योधन, क्योंकि भाइयों की आपस की लड़ाई से घराने की मर्यादा बिगड़ती है। और जब बात राजनीति पे आई, जब राजनीति पे आई तो यही हुआ कि जब देश में राजनीति डगमगाएगी, तब देश के विभाजन का प्रश्न काले सर की भांति अपना फन उठाए खड़ा होगा। ये भी एक शिक्षा है महाभारत की। और शिक्षा को लेकर महाभारत में बहुत बड़ा प्रसंग है। यहाँ एकलव्य ने जब आचार्य द्रोण के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया तो आचार्य द्रोण ने उससे पूछा कि मैंने तुम्हें शिक्षा दी नहीं तो तुमने शिक्षा ली कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा बुत बनाकर, तुम्हारा स्टैचू बनाकर उससे सब कुछ सीखा, उसको गुरु माना। तो आचार्य द्रोण ये कहते हैं कि शिक्षा दी जाती है, शिक्षा दी नहीं जाती जब तक गुरु शिक्षा देना, शिष्य का कोई अधिकार नहीं कि उसे शिक्षा दे। तो आज ये जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बने हैं, ये शिक्षा लेने के लिए ही बने हैं। आप वहाँ जाते हैं और उसी गुरु शिष्य परंपरा का सबसे बड़ा उदाहरण मैं इस स्कूल में देखा, और मुझे मेरा हृदय गदगद हो गया कि वाकई में ये स्कूल जो है भारतीयता के ऊपर चल रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आने वाले समय में ये स्कूल जो है बहुत सारी तरक्की करेगा। जाने से पहले
मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और अगर आपका मूड ठीक हो और महाभारत का संवाद सुनना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करके बताइए, तो मैं आपको सुनाऊंगा, नहीं तो मैं। The name of Lord Shiva gives eternal peace, and the verses of Lord Shiva restores calamities. The Mahamrityunjay mantra restores longevity and wards off calamities and untimely death. It's a love, it's a respect for you, sir. इस राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्रों में मैंने शूटिंग की है और करीब 30 एक राजस्थानी फिल्में की हुई मैंने अपने कैरियर में। तो राजस्थान को देखा है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि ढूंढ रोड क्षेत्र में झुंझुनवार में आने का पहला अवसर हुआ मेरा। स्कूल के कार्यक्रम को देखकर कई नई चीज़ें पता चली। बहुत सारे स्कूलों के कार्यक्रम में मैं गया हूँ। एक तो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो था वो बहुत फिनिशिंग के साथ था। कहते हैं ना, कलाकार अच्छा वही हो फिनिशिंग करके निभा सके, तभी लोगों को वो रोल पसंद आता था। तो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर टीचर्स ने मेहनत की है, उन्हें वो फिनिशिंग नोट देने की कोशिश की, उनकी कला को, उनके कार्यक्रम को, उनकी मूवमेंट्स को। तो वो बहुत अच्छा था। दूसरा जो बहुत चीज़ मुझे इम्प्रेस की वो ये है कि यहाँ का जो बच्चों का डिसिप्लिन है वो देख के बहुत अच्छा लगा। अनुशासित बच्चे हैं, मतलब दूसरा गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। हर बच्चा जो अवार्ड लेने आ रहा था वो पैर छूता है, वो मान सम्मान देता है। तो वाकई में खुशी होती है कि हम किस ओर जा रहे हैं, हमारी दशा और दिशा कैसी है, हम देश को, अपने राज्य को किस दिशा में ले जा रहे हैं। ये जो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी नई पीढ़ी को एक दिशा दे सकते हैं। अब ये बड़ों का फ़र्ज़ बनता है कि वो उन्हें कैसी दिशा दें। मैं भी शिक्षा वर्ग से ही जुड़ा हुआ हूँ, एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ। तो ये जो शिक्षा का माध्यम है, ये राष्ट्र निर्माण का माध्यम है। आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, ये शिक्षा ही इस देश में फैसला करती है। सर, आपने यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी देखे, क्या लगता है कि जो शुरुआती जो कला का जो मूवमेंट है वो स्कूल से ही शुरू होता है, या फिर स्कूल में कोई ऐसा सब्जेक्ट भी होना चाहिए जिससे रेगुलर ये क्लासेस लगती है? देखिए, कला दो तरीके से आती है। एक तो बाई बर्थ होती है, एक इम्बाइब की जाती है, एक आप में डाली जाती है जिसको आप अभ्यास बोलते हैं। कला का क्षेत्र ऐसा है कि बहुत डिमांडिंग होती है, आपसे बहुत कुछ लेती है, लेकिन आपको जो देती है वो कई गुना होता है। मुझे लगता है अकेला प्रोफेशन है दुनिया के अंदर जिसमें नेम, फेम, मनी एंड प्लेजर चारों चीज़ें एक साथ मिक्स है। तो आज जो भी कलाकार बड़े मुकाम पे हैं, उन्होंने अपना कैरियर शायद स्कूल से ही शुरू किया था। उनमें बाई बर्थ होगा, ये स्टेज पे आके कहना थोड़ा संभव होता है, बट कहीं ना कहीं बाई बर्थ होता है। तभी वो स्कूल में भी देखिए, आप वही बच्चे भाग लेते हैं जिनके अंदर कुछ कला का अंश होता है। तो उस कला के अंश को निखारना जो है, ये हमारी जो फैकल्टी होती है, डांस टीचर्स होते हैं, सिंगिंग टीचर्स होते हैं, या कला से जुड़े दूसरे भी जो फैकल्टी होती है, उसे निखारती है। और धीरे धीरे उनमें से कुछ बच्चे होते हैं जो कला को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। तो बस इसी तरह एक कलाकार पैदा होता है। कलाकार वही होता है जो आने वाले कल को आकार दे सके। तो भारत को ऐसे कलाकारों की, चाहे वो राजनीति में हो, मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो, ऐसे ही कलाकारों की आवश्यकता है जो देश को एक अच्छा मोड़ दे सकें, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें। टेलीविजन इंस्टीट्यूट जब पुणे में आप चेयरमैन थे, उस दौरान विरोध के बाद में आपको चेयरमैन पद से इस्तीफा देना पड़ा। आपने कहा था 1 साल और देकर मैंने एक मिनट रिज़ाइन नहीं किया। मैंने, आप गलत कह रहे हैं। मैंने रिज़ाइन नहीं किया, मैंने अपना टेन्योर पूरा किया था। इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि मैंने रिज़ाइन किया। ये कई प्रेस वाले पूछते हैं मुझसे, आप कम से कम गूगल तो उठा के देख लीजिए। गूगल तो कह रहे हैं, और गूगल गलत बोल रहा है। मैंने टेन्योर पूरा किया 3 साल का, 14 से। विरोध हुआ था, सुना, बता रहा हूँ मैं, विरोध हुआ था। उसके बाद जो कैग रिपोर्ट आई पार्लियामेंट में, उसमें लिखा हुआ कि गजेंद्र चौहान के टेन्योर में सबसे बढ़िया काम हुआ। वो मेरी जीत है। आप पर और एक और जीत है मेरी, सुन लीजिए। वहाँ साल में 2 स्ट्राइक होती थी, 8 साल से 1 स्ट्राइक नहीं हुई।
आप पर भगवाकरण का आरोप लगा था और आज हमने देखा कि आपने बच्चों को साउथ से आपने मतलब कंपेयर किया था कि बच्चे साउथ, एक कलाकार के लिए कोई सब संप्रदाय के लोग बराबर होते हैं। क्या ये बदलाव उस दौरान या बदलते दौर में इस चीज़ को क्या साउथ क्या आज आपने संबोधन में ये चीज़ काउंट की थी कि बच्चे साउथ को माधुरी दीक्षित के रूप में दिखाई दे रहे हैं, अच्छी बात शाहरुख है। और माधुरी दीक्षित के कलाकारों के रूप में लिखा है। कलाकार की कोई जाति नहीं होती, अच्छी बात हमें लगी। क्या ये बदलाव, क्योंकि आपका पृष्ठभूमि बीजेपी से आती है इस तरीके से, तो क्या ये बदलाव एक अच्छे संकेत के रूप में देखें? बीजेपी अगर अच्छा संदेश दे रही है तो दे देना चाहिए। वो गजेंद्र चौहान जी की तरह से बिल्कुल। एक सर, बॉलीवुड में सबसे हॉट इशू ये था कि बायकॉट की परंपरा चालू हो गई, तो क्या मानते हैं आप, जैसे फिल्मों का जो बायकॉट हो रहा है वो होना चाहिए नहीं? देखिए, ये निजी विषय है, कोई बायकॉट करता है कोई नहीं करता, ये अपने आपका निजी विषय होता है, कौन बायकॉट करता है कौन नहीं करता। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक फिल्म में बहुत लोगों की मेहनत होती है, उस मेहनत को इतना आसानी से बायकॉट नहीं करना चाहिए। एक सर, जो देश में नई शिक्षा नीति आ रही है उसकी क्या नहीं? शिक्षा नीति जो है बहुत अच्छे पहलू हैं उसमें एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट दिए हुए हैं। एक स्टूडेंट जब अगर शिक्षा अधूरे में छोड़ के दोबारा शुरू करना चाहता है तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, उसे मॉरल वैल्यूज़ दी हुई है, एथिक्स वैल्यू दी हुई है, उसमें बहुत सारे ऐसी नई चीज़ें हैं। जैसे अब इसमें क्रेडिट सिस्टम शुरू कर रहे हैं तो समानता का विषय भी है उसमें कि आप सारे स्टूडेंट को जो है मार्क्स ना दे के ग्रेडिंग देंगे, और वो छात्र कभी भी अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ के जाना चाहे या किसी कारणवश पूरा ना कर पाए तो ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे आके वहीं से तुम्हारा शुरू कर सकता है। रामायण और महाभारत के जो कलाकार थे उनका हर घर में एक ऊंचा ओहदा और एक भगवान स्वरूप उनको आज भी लोग याद करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कई ऐसे जो सीरियल्स के कलाकार जो ऊपर पॉलिटिकल पदों पर पहुंचे हैं, गजेंद्र चौहान साहब जिस तरीके कृष्ण के रोल का भी आपको फिल्म किया गया था महाभारत में, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो उनको एक पद मिलना चाहिए, जो एक गरिमा या पॉलिटिकल मिलना चाहिए था या एक पद मिलना चाहिए, क्या कहीं ना कहीं कंपेयर करें कुछ ना कुछ कमी रही है? मैं एक विचारधारा से जुड़ा हूँ, उस विचारधारा ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है, और यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होना कोई छोटी बात नहीं होती। राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगा हुआ और करता रहूँ। अभी आपने प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं जो देश के, उनको आपने आधुनिक भारत का युधिष्ठिर बताया था, तो उसको क्या कहेंगे? मुझे लगता है केवल प्रधानमंत्री के पद पे नहीं बल्कि हर पद पे देश में एक युधिष्ठिर की आवश्यकता है, जो अपने राज्य को, अपने प्रदेश को, अपने मोहल्ले को, अपने इलाके को, नगर निगम में एक सही दिशा दे सके। क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलते हुए ही युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर को एक सही दिशा दी थी, तभी उन्होंने आने वाले समय में इंद्रप्रस्थ पे राज किया। और युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? युवाओं को यही कहूँगा कि हमेशा वर्क ऑनेस्टली, वर्क विथ पैशन। आप किसी भी फील्ड में हो, आपके अंदर उसके प्रति अपना पैशन होना चाहिए, और वो काम आपको ईमानदारी से आप करेंगे तो आप कभी गलत हो नहीं सकते। एक रिपोर्ट एजुकेशन और एक रिपोर्ट जो जिस तरीके से देश की सेंसस को बिगाड़ा है, अमेरिका हैज़ वो रिपोर्ट को लेकर आंटार्डिस दृष्टिकोण में कुछ उस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? नो कमेंट्स। सर, शेखावाटी में काफ़ी प्रतिभाएं हैं जो प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या आ रहे हैं? देखिए, आज बहुत सारी प्रतिभाओं को हर प्रदेश सरकार जो है वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म दे रही है। जैसे हरियाणा में भी फिल्म सिटी बनने की तैयारी है, नोएडा में बन रही है, और प्रदेशों ने भी तैयारी कर दी है। तो ऐसे आने वाले समय में जो लोकल कलाकार होंगे उनको वहाँ से काम मिलेगा, उन्हें जो रोज़गार मिलेगा। एक अच्छा रास्ता निकाला है, फिल्म पॉलिसीज़ आ गई हैं सब स्टेट्स में, तो मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छा शुभ संकेत है। आने वाले समय में फिल्म इंडस्ट्री और कलाकारों को इसको सहारा लेके काम मिलता रहेगा। बेरोज़गारी, मुंबई के ऊपर जो ओवरलोड है मुंबई, मुझे लगता है कि वो स्ट्रगल जो है थोड़ा कम हो जाएगा और रोज़गार और काम मिलने में थोड़ी आसानी है। सर, शेखावाटी में काफ़ी बड़े बैनर हैं जिन्होंने मूवियाँ बनाई हैं, तो क्या कोई शेखावाटी को स्पेशल पैकेज वगैरह कुछ मिलेगा? देखिए, ये तो सरकार फैसला करती है, मैं तो करता नहीं हूँ। तो सर, रिकमेंडेशन तो ये सवाल आप सरकार से करें तो बेहतर है। देश में जो वामपंथी दक्षिणपंथी विचारधाराएं, क्या लगता है जैसे ये विचारधाराएं अच्छे कार्यों में कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती है, आपने जैसे चौहान साहब का जो विजन था हमने देखा था, और जिस तरीके से जो आपने कैरेक्टर में प्ले किया है, क्या लगता है ये ऐसी विचारधाराएं कभी कभी आमने सामने अच्छी चीज़ों को भी रोक देती है? नो कमेंट। जी सर, आज स्कूल का एनुअल फंक्शन अरुणिमा 2023 का आयोजन किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी की आशा है और पूरा विश्वास है कि 2047 तक ये देश विकसित बने। और आप लोगों ने देखा कि आज ये जो छोटे बच्चे हैं, जो पौध है हमारी,
ये किस लेवल पे काम करते हैं। इनका वर्क देख के शायद आपको भी लगा होगा कि निश्चित रूप से हम 2047 तक विकसित होंगे। आज आपने देखा है कि विभिन्न साइंस एग्जीबिशन, आर्ट एंड क्राफ्ट में जो बच्चों ने काम किया है, चाहे वो वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो मोटे अनाज को मैक्सिमम यूज लेने के लिए हो, चाहे वो यातायात से रिलेटेड हो, या जो प्रोग्राम बच्चे दे रहे हैं, चाहे देशभक्ति से रिलेटेड है, वुमन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, या सोशल वैल्यू से रिलेटेड है, सोशल भाईचारे से रिलेटेड है, ये सारे प्रोग्राम है। निश्चित रूप से ये बच्चों की जिज्ञासा है कि हम ये प्रोग्राम में देश को क्या मैसेज दें। तो निश्चित रूप से बच्चों ने ये मैसेज दिया, तो लगता है कि बच्चों के कार्यक्रम देखिए कि निश्चित रूप से 2047 तक हम विकसित होंगे, 100% विकसित होंगे। आज उन बच्चों को सम्मानित किया गया है जो इस स्कूल के पूर्व स्टूडेंट हैं और आज देश या विदेशों में अपना काम करके इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं और बाहर से अर्न करके देश में कैपिटल भेज रहे हैं या पैसे भेज रहे हैं। तो निश्चित रूप से देश की इकोनॉमिक डेवलप हो रही है। आज हम उन मेडिकल ऑफिसर्स को भी सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने लंपी वायरस में बहुत शानदार काम किया है। तो उन्होंने निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी महामारी थी और इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके और काफ़ी कंट्रोल किया, तो उनको भी हम सम्मानित करें। जब हम किसी को रेस्पेक्ट करते हैं तो वो एक साथ में जिम्मेदारी लेके आती है, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे और किसी भी प्रोफेशन में हो। तो निश्चित रूप से ये जो सम्मान है ये एक जिम्मेदारी का भाव भी लेके आती है। तो मैं समझता हूँ कि इनको रेस्पेक्ट किया है, सम्मान दिया है, तो एक जिम्मेदारी इनके साथ में जरूर निश्चित रूप से है।